Hello friends, I am Shaurya Mishra. Welcome you to your own YouTube channel Vision Care Advisor. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट जेनेवा लेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेनेवा लेंस या लेंस क्लॉक क्या होता है, जेनेवा लेंस कैसे काम करता है, इसका यूजेस क्या क्या होता है, जेनेवा लेंस का प्रिंसिपल क्या है और इससे हम बेस कर्व कैसे मेजर करेंगे। So, without taking much time, let's get started. So, firstly we need to know what is Geneva lens or lens clock. A simple tool to measure the surface curvature of lens is the Geneva lens measure. It was first patented in the US in 24th February 1891. Geneva lens is a handheld device like a pocket watch with a prong to press against the lens. It has three-pointed probes that make contact with the surface of the lens. So, लेंस की सरफेस कर्व को मापने के लिए एक सरल उपकरण जिसे हम जेनेवा लेंस या लेंस क्लॉक कहते हैं, यह पहली बार 24 फरवरी 1891 में अमेरिका में पेटेंट कराया गया था। इसमें 3 नुकीले प्रोब हैं जो लेंस की सतह से संपर्क बनाते हैं। So now let's know how Geneva lens measure works. Number 1, Geneva lens has 2 fixed pins and a movable pin in the center. Geneva lens में 2 फिक्स पिन और एक मूवेबल पिन सेंटर में होता है। When we place the Geneva lens on a curved surface like the lens of the spectacle, the central pin inverts or protrudes outwards. तो जब हम जेनेवा लेंस को चश्मे के लेंस की कर्व्ड सरफेस पर रखते हैं तो सेंट्रल पिन अंदर की ओर या बाहर की ओर निकल जाता है। मतलब अगर लेंस का सरफेस कॉनकेव है तो सेंट्रल पिन अंदर की ओर, और अगर लेंस का सरफेस कॉन्वेक्स है तो जेनेवा लेंस का सेंट्रल पिन बाहर की ओर निकल जाता है। नंबर 3, a pointer that is activated by a system of gears indicates the position of movable pin in relation to the fixed pin. So, एक सूचक जो मूवेबल पिन की द्वारा सक्रिय होता है वो वॉच पे विजिबल होता है जो फिक्स्ड पिन के रिलेशन की स्थिति को इंगित करता है। Number 4, the central pin indicates the sag of the surface which provides direct reading of refractive power. सेंट्रल पिन सतह की दबाव को इंडिकेट करता है जो डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव पावर की रीडिंग देता है। So let's know the purpose to use Geneva lens measure. Number 1, it is used to give the correct prescription in a pair of eyeglasses. इसका उपयोग चश्मे में सही प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस को देने के लिए किया जाता है। Number 2, this can also used to verify the power of contact lenses if a special lens support is used. So, यह कॉन्टैक्ट लेंस की पावर को वेरीफाई करने के लिए भी उपयोग किया जाता है यदि स्पेशल लेंस सपोर्ट का उपयोग किया जाए तो। Number 3, the Geneva lens is used to measure the radius of curvature of the lens surface to confirm the correct mounting of lenses in spectacle frames. The radius of curvature of the lens reading measured is directly converted into diopter on the instrument scale. As the prescription of a lens depends upon the shape of both the front and back surfaces, more than one measurement is usually required. Means, Geneva lens का उपयोग लेंस के सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को मापने के लिए किया जाता है ताकि चश्मे के फ्रेम में लेंस के सही तरह से फिट होने की पुष्टि की जा सके। मापे गए लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सीधे उपकरण के पैमाने पर डायोप्टर में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि एक लेंस का प्रेस्क्रिप्शन आगे और पीछे दोनों सरफेस के आकार पर
निर्भर करता है। So let's know the principle of Geneva lens measure. The principle of Geneva lens measure is based on the sagittal depth formula, whereby the height of the instrument that gives the correct measure while pressing upon the lens provides the dioptric measure of the power of the lens. So, Geneva lens माप का सिद्धांत sagittal depth यानी कर्व पर आधारित है, जिससे लेंस पर दबाव डालते समय सही माप देने वाले उपकरण की ऊंचाई लेंस की पावर का डायोप्टिक माप प्रदान करती है। Let's know what is the base curve. The curvature of the back surface of the lens is called base curve. Means लेंस की पिछली सतह की कर्व को बेस कर्व कंसीडर किया जाता है। Now let's know the role of the front and back curve. Every lens has a front and a back surface curvature. The front curve is always positive or convex and the back curve is always negative or concave. So, प्रत्येक लेंस में आगे और पीछे की सतह कर्व होती है। फ्रंट कर्व हमेशा कॉन्वेक्स या उत्तल होता है और बैक कर्व हमेशा कॉन्केव या अवतल होता है। Now, let's know how to measure the base curve of the lens. The base curve of any lens can be measured with radius gauge or Geneva lens, also known as lens clock. A Geneva lens has three prongs that can measure the curvature of the lens. So, when these three prongs are placed on a flat surface, the gauge should read 0. यानी किसी भी लेंस के बेस कर्व को रेडियस गेज या जेनेवा लेंस से मापा जा सकता है, जिसे लेंस क्लॉक भी कहा जाता है। जेनेवा लेंस में 3 नॉब्स होते हैं जो लेंस की वक्रता को माप सकते हैं। इसलिए जब इन 3 नॉब्स को एक सपाट सतह पर रखा जाता है तो गेज 0 हो जाता है। When a lens clock is held up against a convex surface, the black numbers indicate the curvature of that surface. For example, a lens clock measures a +5 front curvature. जब एक उत्तल सतह के ऊपर एक जिनेवा लेंस घड़ी रखी जाती है तो काली संख्या उस सतह की कर्वेचर को दर्शाती है। उदाहरण के लिए एक जिनेवा लेंस घड़ी +5 फ्रंट कर्वेचर को मापती है and when a lens clock is held up against a concave surface, the red numbers indicate the curvature of that surface. For example, a lens clock measuring -2 back curvature. तो जब एक लेंस घड़ी को एक अवतल सतह के सामने रखा जाता है तो लाल संख्याएं उस सतह की कर्वेचर को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए एक जिनेवा लेंस घड़ी -2 बैक कर्वेचर को मापती है। So, the front curvature is -5 and the back curvature is -2. Hence, this lens has an overall power of +3. तो इस उदाहरण में फ्रंट कर्व +5 है और बैक कर्व -2 है। इसीलिए इस लेंस का टोटल पावर +3 होगा, यानी +5 जिसमें ऐड करेंगे हम -2 जो कि बैक सरफेस है। So, +5 -2 is equal to +3. Now, I just want to clear you that the overall lens power is simply the sum of the front and back curvature. And as earlier I told you that the front curvature is always positive and the back curvature is always negative. इसीलिए मैं आपको केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समग्र लेंस पावर केवल आगे और पीछे की वक्रता का योग है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रंट कर्व हमेशा उत्तल होता है जबकि बैक कर्व हमेशा अवतल होता है। Here an example of a +2 diopter lens. This is a +2 lens because the front curve is +6 and back curve is -4. If you sum these together, you get +2, means +6 plus
ऐड करेंगे -4, सो द टोटल पावर वुड बी +2। यहाँ एक +2 लेंस का उदाहरण है। यह एक +2 लेंस है क्योंकि फ्रंट कर्वेचर +6 है और बैक कर्वेचर -4 है। यदि आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो आपको +2 मिलता है। One another example to clear your doubt. The following lenses are both +2 lenses, but one has a base curve of +6 while the other has a base curve of +12. Which base curve of the glasses would you prefer in your glasses? So, दोनों +2 लेंस हैं, लेकिन एक का बेस कर्व +6 है, जबकि दूसरे का बेस कर्व +12 है। तो आप अपने चश्मे में किस बेस कर्व को प्रेफर करोगे? Friends, obviously, the lens with the +6 base curve is much more desirable. I know you have doubt that one is having +6 base curve and another is having +12 base curve. So, why we aren't prefer the base curve of +12 for another? So friends, actually the front and back curve total would be 2. That's why we prefer 6 base curve. So जाहिर है +6 बेस कर्व वाला लेंस अधिक प्रेफरेबल है। मुझे पता है कि आपको संदेह है कि एक +6 बेस कर्व है और दूसरा +12 बेस कर्व है, तो हम एक दूसरे के लिए 12 बेस कर्व को क्यों पसंद नहीं करते? तो दोस्तों, असल में फ्रंट और बैक कर्व का कुल टोटल 2 होगा, इसीलिए हम 6 बेस कर्व पसंद करेंगे। Friends, I just want to share a formula which help you to calculate the base curve. The most optimal base curve for any prescription can be calculated using these formulas. तो किसी भी प्रेस्क्रिप्शन ग्लास के लिए सबसे ऑप्टिमल बेस कर्व की गणना इन सूत्रों का उपयोग करके किया जा सकता है। Number 1 for plus prescription glasses and number 2 for minus prescription glasses. So let's know for plus prescription glasses, base curve is equal to spherical equivalent +6. And for minus prescription glasses, base curve is equal to half into spherical equivalent +6. तो प्लस प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस के लिए फॉर्मूला होगा बेस कर्व इज इक्वल टू स्फेरिकल इक्विवेलेंट +6। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको स्फेरिकल इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जब लेंस में थोड़ा सिलेंडर पावर अवेलेबल हो और हम सिलेंडर पावर ना देके ओनली स्फेरिकल पावर प्रिस्क्राइब करना चाहें, तो हम सिलेंडर पावर वैल्यू का हाफ ऐड कर देते हैं स्फेरिकल वैल्यू में। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें पावर +1.25 स्फेरिकल एंड +1.50 डायप्टर सिलेंडर और एक्सिस 180 है, तो इसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि हम हाफ ऑफ द सिलेंडर वैल्यू ऐड करेंगे स्फेरिकल वैल्यू में। तो यहाँ पे सिलेंडर वैल्यू +1.50 है, देन +1.50 का हाफ +0.75 होगा। इट मीन्स इस प्रेस्क्रिप्शन का स्फेरिकल इक्विवेलेंट +2 यानी +1.25 स्फेरिकल जो था और 1.5 का हाफ यानी +0.75 डायप्टर। तो अब हम +1.25 और +0.75 दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट +2 आएगा। ओके, नाउ स्फेरिकल इक्विवेलेंट तो क्लियर हो गया होगा। सो एज पर फॉर्मूला बेस कर्व इज इक्वल टू स्फेरिकल इक्विवेलेंट कितना आया है +2 और आपको स्फेरिकल इक्विवेलेंट में ऐड करना है +6। सो द बेस कर्व वुड बी 8। तो अब हम बात कर लेते हैं माइनस प्रिस्क्रिप्शन के लिए। बेस कर्व इज इक्वल टू हाफ इंटू स्फेरिकल इक्विवेलेंट +6 मीन्स जो भी स्फेरिकल इक्विवेलेंट आता है उसका हाफ यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें +6 ऐड कर दीजिए, देन आपको माइनस पावर का बेस कर्व मिल जाएगा। आई नो कि हर चीज के साथ हम वास्तव में फार्मूले के साथ काम नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी मेड अ चार्ट टू सिंप्लीफाई टू सिलेक्ट द बेस कर्व। सो सबसे पहले हमें ग्लास प्रिस्क्रिप्शन का स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेना है, देन इस बेस कर्व सिलेक्शन चार्ट से मैच करना है कि आपका कैलकुलेटेड
स्फेरिकल इक्विवेलेंट किसके बिटवीन आएगा? अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट +7.50 टू +12.50 के बीच में आता है, देन आपका सजेस्टेड बेस कर्व +12.25 होगा। अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट +4.50 टू +8.75 आता है, देन आपका सजेस्टेड बेस कर्व +10.25 होगा। अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट +1.50 टू +5.75 आता है, देन 8.25 आपका सजेस्टेड बेस कर्व होगा। अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट -1.75 टू +1.75 आता है, देन 6.25 आपका सजेस्टेड बेस कर्व होगा। अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट -1.50 टू -5.75 आता है, देन आपका सजेस्टेड बेस कर्व 4.25 होगा। अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट -4.50 टू -9.25 आता है, देन आपका सजेस्टेड बेस कर्व +2.25 होगा। अगर आपका स्फेरिकल इक्विवेलेंट -9.50 और हायर आता है, देन आपका सजेस्टेड बेस कर्व +0.25 होगा। नाउ अभी तक हमने डिस्कस किया कि जिनेवा लेंस से बेस कर्व कैसे मेजर करते हैं और इससे पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ कम टू नो द disadvantage of the Geneva lens. Number 1. The gauges are calibrated for crown glass only and are subject to considerable error in determining the axis of cylinder. So, गेज केवल क्राउन ग्लास के लिए कैलिब्रेट किया गया है और सिलेंडर के एक्सिस को निर्धारित करने में काफी त्रुटि हो सकती है। Number 2. The gauge gives incorrect measurement for hard resin plastic lenses, for aspheric surfaces, and for invisible progressive or bifocals. So, गेज CR39 यानी प्लास्टिक लेंस के लिए, एस्फेरिक लेंस के लिए और प्रोग्रेसिव या बाइफोकल लेंस के लिए गलत माप दे सकता है। Thank you for watching. Stay tuned for more updates. Please do remember to check your vision yearly and see the world clearly.